Good evening, doctors and other colleagues. On behalf of Dr. Sanjay's Homeopathy, I welcome all of you. As we have decided that monthly or alternate months, we will take one topic and we will do some CME. So this is one CME. I hope all of you know that the meaning of CME. It is defined continuous medical education. So this is one first CME on behalf of Dr. Sanjay's Homeopathy. And this time we have taken one of the most burning topic, that is psoriasis. And definitely we are grateful to our speaker, because our speaker is having the excellent knowledge on this psoriasis and he has made his PPT slides on the basis of his experience. And most of you know our speaker, Dr. Ratnesh Kumar. He is a renowned practitioner, he is a renowned personality in homeopathy. And right now, as I know that he is working in some PSC and he is located at Sitapur. So now, you all have to welcome Dr. Ratnesh. Welcome, Dr. Thank you very much for giving your precious time. Good afternoon, all. So, I'm grateful to Dr. Sanjay's Homeopathy for providing me the platform to speak on psoriasis. So, now, without wasting any time, let's begin with psoriasis. So, the basic point of time here, what I wish to talk about psoriasis is what psoriasis is, and the second most important feature, which is nagging की psoriasis का diagnosis and how to check the impact of psoriasis. ऐसा कहने से काम नहीं बनेगा कि हमारे पास पेशेंट आया, अभी पहले ठीक था, अब और ठीक हो रहा नहीं. एक representation होना चाहिए. There should be some sort of clinical approach जहाँ से हमें लगे कि psoriasis ठीक हो सकता है. So now what psoriasis is, as everybody knows, it is a chronic inflammatory proliferative condition and it disfigures your skin, and it has both the genetical and environmental predisposition. Now, how to define it? It is a well-defined erythematous papules and elevated superficial scales surmounted with large silvery scales. So इसके साथ जो बेसिक चीज होती है उसके पास अनप्रेडिक्टेबल कोर्स होता है, इसमें रिलैप्स होता है, रेमिशन होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसके जो स्किन के ऊपर होता है, यू हैव एन एलिवेटेड स्किन एंड व्हिच इज erythematous, और वो एलिवेटेड स्किन के ऊपर यू हैव scaly flags. एंड व्हाट इज मोस्ट अनोइंग फॉर सोरियासिस इज क्या कि वो आपको इतना डिसफिगर करता है कि वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट करता है, और इस क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज करने के लिए पीपल spend lot of money in the other system of medicine, where homeopathy has lots of answer to this psoriasis. अब psoriasis की पैथोफिजियोलॉजी में जाना चाहेंगे, and what is pathophysiology of psoriasis? जैसे हम जाते हैं स्किन का upper surface becomes very hard, and what is the reason for it? This is uncontrolled inflammation, और वो uncontrolled inflammation क्या करता है? केराटिनोसाइट का प्रोलिफरेशन करता है, डिसऑप्टिमल डिफरेंशिएशन करता है. यानी सेल जो आपके अपर मोस्ट सेल्स होते हैं केराटिन से ही बने होते हैं, वो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, बट लेकिन जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है और उसका प्रोलिफरेशन अनकंट्रोल हो जाता है, देन इट लीड्स टू सोरियासिस. और इसके अगर आप उसको सोरियाटिक प्लेक्स को स्क्रैप ऑफ करके उसके अंदर नींद देखना चाहेंगे तो जो अपने इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं वो कौन से इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं? Dermal dendritic cells, macrophages, T cells, neutrophils, and the other most important feature of psoriasis is the natural bone formation, blood formation, blood vessels formation. नई blood vessels का formation शुरू हो जाता है. The basic concept psoriasis का लोगों ने पहले conceptualize किया कि psoriasis begins with trauma or some infection, और वो infection और trauma इतना ज़्यादा traumatize होता है कि वो clinical course को बढ़ाता है. The other feature why psoriasis and how, which are the major roles जो psoriasis में play करते हैं, these are the dendritic cells जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, and they have major role in
इनिशियल प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। अब मैकेनिज्म की बात करना चाहेंगे, जैसे पैथोलॉजी मैकेनिज्म कैसे होता है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है एएमपी होती है, दैट इज एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। इनका जो डेरिवेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स व्हिच इज सेक्रेटेड बाय केराटिनोसाइट्स। अभी मैंने बताया एक्स्ट्रा जो केराटिनोसाइट्स हैं उनका अनयूजुअल अनवांटेड ग्रोथ या अनयूजुअल उनका जो पर्पस है वो अपने पर्पस से ऊपर करते हैं। So which is secreted by keratinocytes in response to injury, and this is overexpressed in cases of psoriasis. These are the markers, let's say LL37, B differences, S100 protein, LL37, ये attribute करते हैं pathogenesis of psoriasis. Now, ये हमारा जब मैंने बोला था कि psoriasis begins with trauma. ट्रॉमा फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है। देयर इज वन न्यू कांसेप्ट व्हिच हैज कम अप, इज अ जर्मन न्यू मेडिसिन। वो बोलते हैं व्हाट टू जर्मन न्यू मेडिसिन। मैं पूरे जर्मन न्यू मेडिसिन के बारे में स्ट्रेट अवे सोरियासिस कांसेप्ट पे जाना चाहूंगा। जर्मन न्यू मेडिसिन बोलता है कि कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है आपके माइंड में और माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जो माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कुछ ना कुछ आपके अंदर रिस्पॉन्सेज देता है। वो रिस्पॉन्सेज जिस ब्रेन के पार्ट से रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं उससे बॉडी पे मैनिफेस्टेशन आता है। इसमें जो वर्क करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट सोरियासिस में है वो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है। अब मैं सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल कोई भी अपने पेट से बहुत अटैच्ड है, सडनली पेट्स डाइज, तो क्या हो रहा है? वो अपने पेट से सेपरेट हो रहा है और उसके बिना नहीं रह पा रहा। फॉर एग्जांपल या फादर अपने सन के साथ अटैच्ड है। सम और द रीजन यहाँ डेथ ही नहीं जरूरी है, सम और द रीजन जहाँ पर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और सेपरेशन हो रहा है और सेपरेशन के बाद वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जिसके बाद माइंड में रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। द पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई ट्रिगर होता है, अगर आपको उसको रिजॉल्व कर लेते हो तो बॉडी के अंदर कोई पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में चेंज ओवर नहीं होता है। वो चेंज ओवर तब होता है जब अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर पाते। यही भी पूरी होम्योपैथी डिपेंड करती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो हमारे इस कॉन्फ्लिक्ट से ही मतलब नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट को फॉर एग्जांपल मेरे अंदर सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट आया, मेरा मैनिफेस्टेशन आपके मैनिफेस्टेशन से चेंज होगा। मैंने किस तरह से उसको लिया, मैंने किस मेंटल प्लेन में गया और मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा हुआ, वो मेरे मेंटल रूब्रिक्स बनने वाले हैं। और होम्योपैथी में मैन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट। मेरे मैनिफेस्टेशन कैसे हैं, मैं कैसा सोच रहा हूँ, मेरा थिंक टैंक कैसा जा रहा है, वो सारा एलिसिट करना पड़ता है। और वो एलिसिट करने के बाद राइट ट्रैक में जाएंगे तो सोरियासिस बहुत अच्छे से काम करती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सोरियासिस है, जैसे अदर डिजीजेस का जो काम नहीं मेरे पास आया और मैंने ठीक किया और ठीक हो गया। सोरियासिस का क्योंकि इसका ट्रेंड होता है, जब आपने उसको दिया और उसको रिलैप्सेस बहुत सारे होते हैं तो होम्योपैथिकली कैसा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पूरी बॉडी में सोरियासिस है, मैंने दिया तो हो सकता है रेमिशन में पूरा खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि सोरियासिस दोबारा नहीं होगा। अगले बार सोरियासिस निकलेगा, उससे कम में निकलेगा, उसके बाद फिर आएगा, फिर जाएगा। तो जिस कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा कि टेक्स कैसा सोरियासिस है, कितने दिन का सोरियासिस विल डिपेंड अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस। तो सोरियासिस पॉजिटिव डिजीज है तो आपको उस की तरह सोरियासिस को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन एक 4-5 ईयर्स में सोरियासिस अपना पूरा क्लिनिकल सोर्स चला खत्म कर लेता है और ठीक हो जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड पार्ट ऑफ द होम्योपैथी, योर ट्रीटमेंट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आपको स्टेरॉइड्स पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, आपको इम्यून सिस्टम नहीं डिस्टर्ब होता है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। One more clarification of the definition. What you want to clarify after separation conflict? Okay. Attachment leads to detachment, leads to psoriasis. Suppose you have fallen in love with someone and their detachment has taken place and you are not able to forget it. It leads to psoriasis. हाँ, मेरी अगर देखिए ये सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट इज वन ऑफ द रीजन फॉर स्किन डिसऑर्डर में। अब ऐसा नहीं है कि मेरी जो मैनिफेस्टेशन जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन मेरे को अफेक्ट कर रही है तो हर बार वो कॉन्फ्लिक्ट से मुझे केवल सोरियासिस होगा। लेकिन अगर मेरे को जैसे आपने बोला किसी से अटैचमेंट है, छूट गया और मैंने अपनी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया, मैं बहुत हेल्दी माइंड ऐसा आदमी, अरे कोई बात नहीं वो तो किया, मैं दूसरा खोज लूंगा। वो वैक्यूम फिलअप हो गया, अगर वैक्यूम फिलअप होता ही उसने अपने माइंड से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया, मेरे से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको सोरियासिस नहीं, एक हो गया कि वो वैक्यूम जो होगा वो उसने फिलअप कर दिया।
ठीक है, तो देन नथिंग विल हैपन, नहीं होगा, है ना? तो बट जो वैक्यूम अगर है, हाँ, वैक्यूम है, तो इट लीड्स टू सोरियासिस. this may be one of the cause of One of the leading cause. one of the cause leading to psoriasis हो सकता है. मतलब ऐसा इनके कंफ्लिक्ट में देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द कॉजेस जब कंफ्लिक्ट की सोरियासिस में लेंगे तो वो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट होता है. He thought that patient is not able to fill up that vacuum, हाँ. it leads to soriasis. हाँ, तो मतलब मेरे को कुल मिलाकर के ऐसे जीएनएम जब हम बात करते हैं तो जीएन जनरल मेडिसिन केवल एक चीज़ पे काम करता है, वो काम करता है कि आपके कंफ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए. और होम्योपैथी क्या करती है, हमारे मेंटल प्लेन पर काम करती है. तो जब हम काउंसल करते हैं और मेडिसिन देते हैं तो दो प्लेन काम करते हैं एक साथ. जब दो प्लेन काम कर सकते हैं, मुझे पता तो चल गया ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेशेंट है, मुझे पता है कि नेचर को कॉन्फ्लिक्ट का है. आपके पास पेशेंट आएगा ऐसे चीज़ रिवील नहीं करेगा आपको, लेकिन आप बाई आर्ट ऑफ होम्योपैथी आप उसके अंदर प्रोब कर सकते हो. तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये कंफ्लिक्ट है और उस कंफ्लिक्ट का मैनिफेस्टेशन कैसा है. जब कंफ्लिक्ट का मैनिफेस्टेशन में पता चल जाएगा. केवल एक सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से वो पेशेंट अपने अंदर कैसे इमोशंस लेके जाना है और उसका मैनिफेस्टेशन कैसा दे रहा है. एक आदमी एकदम डम हो जाएगा, दूसरा आदमी एग्रेसिव हो जाएगा, तीसरा आदमी चैलेंज करने लगेगा. लेकिन सब में सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन मेरी तीनों होम्योपैथियाँ की मेडिसिन अलग अलग. वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कैसा इम्पैक्ट आपके ऊपर दे रहा है और आप कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने अंदर. कोई तो ऐसे होगा कि कोई बात नहीं, कोई तो ऐसा दिन भर रोता ही रहेगा, कोई तो ऐसा होगा जाके चैलेंज करेगा, रिवोल्टियस हो जाएगा, कोई तो कोई बोलने लगेगा कि मैं उसको सजा सिखा के रहूँगा. तो ये अलग अलग रूब्रिक्स हो. चैलेंज ऐसा भी हो सकता है कि इट्स फाइन दैट इफ यू कैन लिव विदाउट मी, आई कैन आल्सो लिव विदाउट यू. एक नहीं हो सकता है ना? वो चैलेंज उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको इट विल नॉट लीड टू सोरियासिस. अगर उसने नहीं कहने से नहीं होगा, नहीं, उसने दिमाग से भी हटा दिया, उसको नहीं सोरियासिस होगा. यस, उसे दिमाग से ही हटा दिया, उसके दिमाग में एक पॉइंट ऑफ टाइम भी नहीं चलना चाहिए कि ये चीज़ें हैं. तो ये कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंफ्लिक्ट और एवरीथिंग बिगिंस विद माइंड. सेकेंड, जेनेटिक्स और इंसिडेंस. जिन लोगों को लगता है कि जेनेटिकली सोरियासिस नहीं होता है, फॉर देम पता चलना चाहिए कि देयर आर एटलीस्ट 60 फोकाई जो अब तक पता चल चुके हैं. पता नहीं कितने और होंगे, देयर आर 60 फोकाई जो पता है जो कि सोरियासिस की सस्पेक्टेबिलिटी को ले जाते हैं. और 50% ऑफ द टाइम व्हिच इज PSOR1 SOR1 जो फोकाई है वो लेता है. इंसिडेंस की बात करें तो एक स्टडी जो प्लांटर ने उन्होंने बताया कि 0.44 से 2% जितने भी स्किन मैनिफेस्टेशन होते हैं सोरियासिस अमाउंट्स टू 0.44 से 2.2%. और अमेजिंग फैक्ट क्या है, ज़्यादातर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर फीमेल्स में ज़्यादा होता है, लेकिन सोरियासिस मेल्स में ज़्यादा होता है. इट इज अबाउट 2.46 टाइम्स मोर इन केसेस ऑफ मेल्स एज कंपेयर्ड टू फीमेल्स. और फेमिलियल अकरेंस की बात करें तो 36 टाइम्स द लाइन फैमिलीज में परकोलेट करता है नीचे सोरियासिस. तो अगर आपके पास सोरियासिस का बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, इट इज 36% लाइकली दैट योर चाइल्ड कैन हैव सोरियासिस. तो ये जेनेटिकल डिस्पोजिशन है. जेनेटिकल है. ये क्या है, मतलब प्रैक्टिकल है, वायरल है, फंगल है? नहीं, मैं ट्रिगरिंग कॉज की अगर बात करूँ नहीं, सोरियासिस क्या है? सोरियासिस तो मैं बता रहा हूँ ना, बिकॉज जेनेटिकल जब क्रोमोसोम फोकाई की बात कर रहा हूँ तो जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो गया ना, जेनेटिकली इन्वॉल्व है, जेनेटिकल डिस्पोजिशन इसके अंदर है ही है. क्योंकि हम फोकाई तक की बात करें, PSOR1 फोकाई की बात करें, वहाँ हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की बात करें, दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स. तो बहुत ही ज़्यादा जेनेटिकल डिस्पोजिशन सोरियासिस का है. अब यहाँ पर ट्रीटमेंट जो मॉडर्न ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वहाँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, विटामिन डी एनालॉग और फोटोथेरेपी. मैं यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसलिए लिखने की मेरा पीछे पर्पस ये है कि यहाँ दो ऐसी चीज़ है, फोटोथेरेपी एंड विटामिन डी एनालॉग. दिस इज सप्लीमेंटेशन, दिस इज नॉट मोड ऑफ ट्रीटमेंट. मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. हम एक बार ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हटा देते हैं तो हम अपनी जब मेडिसिन देते हैं तो इसका साथ ले सकते हैं, फोटोथेरेपी और विटामिन डी एनालॉग्स का साथ ले सकते हैं इन केस कंजंट. वैसे होम्योपैथी ऐसे भी काम करती है, लेकिन हाँ, अगर हम पेशेंट को फोटोथेरेपी दे सकते हैं, फोटोथेरेपी को नेचुरल फोटोथेरेपी दे सकते हैं,
मॉर्निंग उठ के अर्ली मॉर्निंग सनलाइट्स में बैठेगा तो ऐसी चीज़ें हम सोरियासिस की, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ना बाची ऑयल लगवाते हैं और सनलाइट में बैठाते हैं, तो बाची ऑयल इज डूइंग आई थिंक सो डूइंग नथिंग, बट वो जो फोटोथेरेपी मिल रही है उसको जो बाची ऑयल में बैठता है तो वो उसको आराम देता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, फोटोथेरेपी। अगर सोरियासिस पेशेंट को हम बोले अर्ली मॉर्निंग में दोपहर के 12 बजे की लाइट नहीं चाहिए मुझे लाइट जब चाहिए जब सूरज खिलता हो और उस समय की मुझे 15 से 20 मिनट की लाइट इज सफिशिएंट। नाउ द सेकंड, होम्योपैथी के बारे में क्या कहना है, मैन एज ए होल, तो जितने भी मैनिफेस्टेशन इज जस्ट ए पार्ट ऑफ, अगर सोरियासिस करूँ तो मैन इंटरनल होल का एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, छोटा सा एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने बोला ना कि जो स्टिमुलाइज ट्रिगर करती है और वो कैसा मैनिफेस्ट होता है वो सोरियासिस के फॉर्म में आता है। तो बहुत हमारा होलिस्टिक कंसेप्ट है बहुत सोरियासिस। अच्छा, अभी सबसे ज़्यादा हमें क्या होता है कि हम अगर होम्योपैथी की डोमेन में जाएं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं होम्योपैथी काम नहीं करती है। उसके पीछे क्या हमारे पास लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस देता है। हम ठीक तो बहुत कुछ करते हैं बट हम उसको साइंटिफिकली नहीं दिखा पाते हैं। तो जब हम सोरियासिस की EASI स्कोर, सोरियासिस असेसमेंट सीवियरिटी इंडेक्स स्कोर होता है जिससे हम सोरियासिस हमारे पास जो पेशेंट आया उसको कितना स्कोर आज की डेट में मिला और जब हमारे ट्रीटमेंट चल रहा तो वो कैसा स्कोर है। वो स्कोर 0 से 72 तक हो सकता है, कैन बी अप टू 0 to 72 where 72 is maximum and 0 is minimum. So I can say if I somebody had 36 score and at the end of the treatment he has scored 4, तो हम ये कह सकते हैं ना कि there is a remarkable change और हमें ये दिखाना पड़ेगा and it depends upon 3 important factors, that is erythema, induration and discoloration, 3 factors होते हैं। और हम स्केल नेक्स्ट पे जाएं, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करें नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, पासी स्कोर में जैसे मैंने बोला ना कि मैं आपको एक चीज़ का भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पासी स्कोर में इम्पोर्टेंट फीचर क्या चीज़ है। हम 3 चीज़ों को देखते हैं, क्या, रेडनेस, थिकनेस, स्केलिंग। अब किसको कितने नंबर दें उसके लिए मेरे पास कोई तो गाइडलाइन होनी चाहिए ना। इस वाले को 1 नंबर देंगे, इस वाले को 2 नंबर देंगे। तो दिस इज द स्केल जो बताती है अगर रेडनेस को लेंगे तो अगर ऐसा होगा तो स्कोर 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4। ये फोटो स्केल आपको अपने पास रखनी पड़ेगी एंड दिस कैन, तो ऐसे ही थिकनेस देखने के बाद जो आपका पेशेंट आता है आपको इस फोटो से मैच कराना होगा। विद टाइम अगर आप सोरियासिस जब ज़्यादा देखने लगो तो आपको समझ में आने लगे कौन सा स्कोर है। फाइनली हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको रेडनेस का स्कोर 1 था, थिकनेस का स्कोर 2 था, स्केलिंग का स्कोर 1 था, तो कितना होगा 1 + 2 + 1 will be 4। ठीक है ना। अब हम इसके 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, हेड, हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज, हमारा ट्रंक एंड हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज। इसका मल्टीप्लिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा जोड़ आता है द एडिशन विच कम्स अप, अगर वो हेड रीजन वाला है, यहाँ तक का रीजन है, वी मल्टीप्लाई विद 0.1, देन वी ऐड अप विद द, अगर अपर एक्सट्रीमिटीज में है तो उसको हम 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ट्रंक वाले को 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज वाले को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक चार्ट हमेशा हम अपने पास रखते हैं। तो कैसा रखते हैं, हेड का तीनों पॉइंट्स, हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज के तीनों पॉइंट, हमारे ट्रंक के तीनों पॉइंट्स, सबका अलग अलग जोड़ कर लेंगे। पहले वाले को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाले को 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.3 से, 0.4 से। द रीजन बिहाइंड इज सबका एरिया अगर आप देख लो उसी प्रोपोर्शनेट में ज्यादा होता है, इसीलिए मल्टीप्लायर फैक्टर बदल जाता है। दिस इज मैंने आपको बोला ना ये 1 B1 आ गया, वो समेशन वाले को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, समेशन 2 वाले को 0.2 से, समेशन 2 0.2। नेक्स्ट, हाँ आगे उसके बाद वो कितना एरिया इफेक्ट कर रहा है। अब हेड में 0.1 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन मैं पूरा हेड कवर किया हुआ है,
तो अगेन देखिए, अगर एरिया अगर हेड में कोई भी लीजन नहीं है तो हम 0 ले लेंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पूरे हेड का 1 से 9% है, दैट इज 1, 30 से 29, 2%, 2, 3, 4, ये मल्टीप्लायर्स है एक्चुअली एंड ऑफ द डे, जितना परसेंटेज ऑफ एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उनको हम जोड़ देंगे। दिस इज, ये जितना हम करेंगे उतना हमें आएगा। तो फर्स्ट थिंग, पहले मुझे पता करना है ब्रेडनेस, थिकनेस और स्केलिंग कितनी है, उनको जोड़ लेंगे। फिर किस एरिया में है उसको ऐसे मल्टीप्लाई हेड वाले को 0.1 से, एक्सट्रीमिटीज अपर एक्सट्रीमिटीज 0.2, एब्डोमेन वाले एरिया को 0.3 और लोअर एक्सट्रीमिटीज को 0.4। वो जो आता है उन इंडिविजुअल्स को कितना परसेंटेज इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल 70% हेड इफेक्ट कर रहा है तो कौन सा एरिया आएगा, 5। जो भी आ रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पासी स्कोर मिल जाएगा कि हमारे पास जब पेशेंट अंदर घुस रहा है तो उसको कितने नंबर मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 50 नंबर मिल रहे हैं, 10 नंबर मिल रहे हैं, 20 नंबर मिल रहे हैं। और हर बार जब मेरे पास पेशेंट आएगा तो कम से कम एवरी फोर्टनाइटली या एवरी मंथली एक असेसमेंट हम करेंगे। ये कहने से नहीं काम चलेगा, पेशेंट ठीक हो रहा है, नहीं, दिखना चाहिए ना स्केल में कितना ठीक हो रहा है, कितना नहीं ठीक हो रहा है। अब हम कॉमन ट्रिगरिंग फैक्टर्स की बात कर लेना कि जैसे गटेड सोरियासिस होता है तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से होता है, इन्फेक्शन, ट्रॉमा। जो सबसे ज्यादा लीडिंग कॉज सोरियासिस का माना जाता है वो कोएगुलर फिनोमेना, कोई इंजरी वगैरह से अगर सोरियासिस से इंड्यूस होता है कोएगुलर फिनोमेना होता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ड्रग्स, सिगरेट स्मोकिंग, हार्मोनल फैक्टर, यानी प्रेगनेंसी वगैरह में कई बार सोरियासिस इंड्यूस हो जाता है। क्लासिकल प्रेजेंटेशन जो सोरियासिस के बारे में बात करेंगे, क्लासिकल प्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो सोरियासिस अगर आप लीजन देखोगे तो दे आर शार्पली डिफाइंड एंड वेल मार्क्ड। कोई सोरियासिस, मोस्ट ऑफ द सोरियासिस, हर सोरियासिस बात नहीं कर रहा, क्लासिकल सोरियासिस की बात कर रहा हूं, और वो सिमेट्रिकल होते हैं, इस हाथ में मिलेगा तो उसी के दूसरे हाथ में भी मिलेगा सोरियासिस मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर वो सिंगल लीजन है तो नहीं मालूम। फिर द मेटस इंड्यूलेटेड प्लैक्स में रिंग ऑफ गॉर्नॉक होते हैं, जब एक साथ कई रिंग्स हो जाता है, रिंग ऑफ गॉर्नॉक होता है, ये क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन इस साइन ऑफ सोरियासिस में होता है। और फिर स्केली प्लैक्स जो क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोरियासिस। अब साइट ऑफ प्रेडिक्टेशन, अब ये देखिए इन पॉइंट जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे सोरियासिस होने की संभावना ज्यादा है। ऐसा नहीं सोरियासिस कहीं नहीं हो सकती, लेकिन मैं साइट ऑफ प्रेडिक्टेशन की बात कर रहा हूँ तो कहाँ पे सोरियासिस ज्यादा होगी। These are the points of psoriasis जहाँ पर psoriasis होने की संभावना ज्यादा है। Next. Pressure points में बताया, knees and elbows, क्या extensors, lumbosacral area है आपका। Photo exposed part are rarely involved। मैंने बोला ना फोटो से तो आराम मिलता है लाइट से, तो ये rarely involved है। ऐसा नहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, जब टोटालिस होगी तो सभी चीज इन्वॉल्व होगा। इंट्रीजिनस इन्वॉल्वमेंट, फ्लेक्सर अंदर पार्ट में जो होता है वो इंट्रीजिनस इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। आपकी फोल्ड्स में भी सोरियासिस हो सकती है। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ सोरियासिस में आपको रिप्रेजेंटेशन फोटो से देना चाहते हैं। देखिए, अब जो सोरियासिस होगी क्रॉनिक, अगर आप देखो तो हमारे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आती है, सबसे ज्यादा जो सोरियासिस आती है वो आती है, यही वाली सोरियासिस आती है, इसे हम बोलते हैं क्रॉनिक प्लैक सोरियासिस। 85% लोग होता है। इसमें पिंक वेल डिफाइंड प्लैक्स होते हैं जिनके पास सिल्वरी स्केल्स होते हैं। अब वो सीजन या तो देखिए सिंगल होंगे या तो न्यूमरस हो सकते हैं। और फिर वही साइट ऑफ प्रेडिक्टेशन, एल्बो, नीज, बटक एंड स्कैल्प वाले एरिया को ज्यादा इफेक्ट करेगा, और इस सोरियासिस को क्रॉनिक प्लैक सोरियासिस कहते हैं। दूसरे देखो कैसे होता है मीजल्स का इन्फेक्शन। लेकिन ये आपकी जो गटेड सोरियासिस है, जिसके लीजन 1 सेंटीमीटर ग्राम होते हैं, पिंकिश होते हैं, इंफ्लेमेशन होते हैं, इसमें स्केल्स बहुत कम होते हैं, इसलिए इस वाले सोरियासिस को डायग्नोज करना मुश्किल होता है। मिनिमम स्केली लीजन्स होते हैं, और इनके साथ खास बात क्या होती है, सर्दी जुकाम खांसी के बाद ये वाले इन्फेक्शन आते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन रिसीव करेगा, इन्हें बोलते हैं गटेड सोरियासिस। और ये कॉमनली जो इफेक्ट होते हैं 3rd डिकेड ऑफ लाइफ में, 30
years, बच्चे कम affected होते हैं, तो ब्रैकेट सोरियासिस 30 years of working life में होता है। फ्लैश सोरियासिस जो भी बता रहे थे कोड्स में होते हैं, एंड दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। क्या चीज़ एक्जिमा है कि सोरियासिस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अगेन इंपॉर्टेंट फीचर में दिमाग में का डिमार्केशन, इनका ड्यूरेशन, इनकी क्रॉनिसिटी सोरियासिस को पकड़ने में आसान करती है। नेक्स्ट स्कैल्प सोरियासिस। देखिए सर में हाइपर केराटोटिक्स प्लैक्स होते हैं, सिमेंट टीवी वेल मार्क होते हैं और स्केलिंग होती है। इसको भी मैं आगे सीबोरिक डर्मेटाइटिस से डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, क्योंकि ये भी अगेन बिकम्स वेरी डिफरेंशिएट। 80% लोग सीबोरिक डर्मेटाइटिस को स्कैल्प सोरियासिस से डायग्नोज करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेल सोरियासिस। नेल सोरियासिस अगर देखो इसमें पिटिंग मिलेगा, you have well circumcised depressions on the naily surface, then sublingual scale के यहाँ पर देखिए hyperkeratosis है, thickening of the nail plate, thickening of nail plate थोड़ा whitish हो रहा है, and oil drop sign, pink और red कलर यहाँ पे जो आपका nail है इसमें change हो जाएगा, pink और reddish कलर हो जाएगा। Finally deformity lesions में भी नहीं आती, तब कहते nail का psoriasis। ये इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, हाँ उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नेल का फंगल डिफरेंशिएशन अगेन वही इंपॉर्टेंट है, स्टेज दैट जो फंगल इन्फेक्शन होगा दिस विल मूवीज कई बार इरोड करता है, लेकिन जो फंगल का अपना जो एरिया अगर आप देखो तो ब्लूइश टिंच पकड़ करके जाता है साइड से, टिचिंग होगी, ठीक है ना, लेकिन ना तो उसमें स्केल्स मिलेगा ना ही उसमें आपको ये ऑयल ड्रॉप साइड मिलेगा। इसका कलर वैसे ही रहेगा, येलोइश। ये तो बाद में आएगा, ये तो आपको येलोइश कलर दिख रहा है, लेकिन ये स्केल्स ऐसे अलग से छोड़ना, ये इग्नोर करना पड़ता है। और जो फंगल ऐसा नहीं मिलेगा, फंगल तो आपका साइड से जाएगा, ब्लूइश कलर लेकर के जाएगा, राइट से पूरा आता है, पूरा गेट कवर कर लेता है, ऊपर से शुरू साइड से जाएगा, बाद में कवर करे, ब्लू लेगा, इचिंग होगा, लेकिन उसमें आपको ये चीज़ें मिलेगी ना तो ट्रस्टिंग मिलेगी, ना ही येलोइश में मिलेगा, ना सर्कमसाइड एरिया मिलेगा, ये डिप्रेशन का साइड मिलेगा। कलर ब्लूइश या ब्लैकिश नहीं आता इसका, सोरियासिस में ब्लूइश नहीं, वाइटिश डिफॉर्मिटी लेकर के आएगा और स्केल्स शो होगा। फंगस इन्फेक्शन कभी स्केल्स नहीं शो होगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स इन क्लिनिकल फाइंडिंग, कैंडल साइन। कैंडल साइन क्या होता है, जब आप कैंडल जलाते हैं तो ऊपर से जो मोम निकलता है ना उसको आप टच करके देखो, जो फीलिंग आती है ना वही सोरियासिस स्किन के स्केल से पकड़ोगे ना तो वैसी फीलिंग आएगी, तो उसमें बोलते हैं कैंडल साइन। बर्न ऑफ तो हमने बताई है, तो वो ड्यूरेशन एक साथ हो जाते हैं, बर्न ऑफ बोलते हैं। कोइटनर फिनोमेना मतलब इंजरी के बाद अगर कोई चीज इन्फेक्शन इंड्यूस होता है उसे हम कोइटनर फिनोमेना बोलते हैं। फॉस्फेट साइन, अगर आपने जैसे आप लोग हैं तो अगर आपको हम लोग तो जब फाइनल ईयर में थे तो पॉइंट पर डाल दिया जाता था और सोरियासिस डायग्नोज करने के लिए कहते थे सरफेस से स्केल्स हटाइए। जब स्केल्स हटाते हैं तो पेन पॉइंट इमेजेस दिखते हैं, उसे बोलते हैं फॉस्फेट साइन। दिस इज अगेन ए क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सोरियासिस। नेक्स्ट ये ट्रांसमिटेड है, ट्रांसमिटेड डिजीज है, एक से दूसरे को होती है नहीं, इन्फेक्शियस भी। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस पर अगर हम आ जाएंगे तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस और सोरियासिस अगर एक ग्लास में देखो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा डिफरेंशिएट करना, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस डिफ्यूज होगा तो पूरा सरफेस सब में पकड़ेगा और इंड्यूरेशन कम होगा। इसमें देखिए वेल डिमार्केटेड लाइन्स होंगी और इंड्यूरेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे कोई स्पिलेज नहीं होगा, स्पिलेज मतलब ऐसे झाड़ोगे तो उतना नहीं गिरेगा, इसमें स्केल्स बहुत ज़्यादा गिरेंगे जो आपका सोरियासिस का होगा। इसके डीजी स्केल होंगे, जितना सीबोरिक डर्मेटाइटिस होगा वो जब भी प्रेशर होगा तो वो थिक डीजी होगा, और ये सिल्वर स्केल होंगे, नॉन डीजी फ्लेक्चर होंगे। फ्लेक्शनल सरफेस पे होंगे तो ये लेस वेल डिफाइंड होंगे, वेल डिफाइंड होंगे। इचिंग सीबोरिक डर्मेटाइटिस में भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सोरियासिस। नेक्स्ट, अभी
क्योंकि यहाँ पे दूसरी फोटो इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो सोरियासिस की वही फोटो बार बार डालने का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर आप देखिए डिस्पॉइंट एक्जिमा, एक्जिमा ही है। जब शुरू में एक्जिमा शुरू होता है तो बहुत नॉर्मल रहता है, बाद में वो पूरा ऐसे सर्फेस पकड़ लेता है और साइड में क्रस्टिंग करने लगता है। जब वो क्रस्टिंग करने लगता है तो ऐसा लगता है कि सोरियासिस का प्लेग आ गया। बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, क्रस्टिंग होता है, लेकिन एक्जिमा मोस्ट ऑफ द टाइम लूज आउट करता है कोई भी फ्लूइड। अगर नहीं भी लूज आउट करता है तो थिकनेस मिल जाता है। इसके जो मार्जिन होते हैं इनडिफाइंड होते हैं, और अगर स्किन नेल्स के अराउंड हो तो नेल में चेंजेस नहीं होते हैं, जबकि सोरियासिस में नेक्स्ट ट्रियासिस रोजिया। ये तीन डिसऑर्डर जो एक दूसरे को बहुत लिंक करते हैं। ये जो ट्रियासिस रोजिया अच्छी बात है, सेल्फ लिमिटिंग अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन इट बिगिंस विद अ लार्ज ग्रांड पैच, एक बड़ा सा पैच आता है, उसके बगल में पैचेस वैसे ही शुरू हो जाते हैं। गोल गोल से एनुलर रिंग्स होते हैं और ऑलरेडी स्केल्स अपने ऑन द एक्टिव एज, जो एजेस भी होते हैं वहाँ पे स्केल्स निकल के आते हैं, तो वो मिमिक क्या करते हैं, सोरियासिस को मिमिक करते हैं। सोरियासिस का क्या होता है, पूरा का पूरा जो सरफेस होता है वो स्केल्स छोड़ता है, और ट्रंक लीजन टेंड रन अराउंड टू जेनलाइज के अराउंड ज़्यादा होता है। वैसे सोरियासिस में क्या होगा, रिमिशन एंड रिलैप्स होंगे, एनुलर हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है अगेन सिल्वरी स्केल्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होगा इसके ऊपर। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में सोरियासिस जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, और वो सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी करता है, क्योंकि 50% ऑफ दी अनरिजॉल्व पेशेंट अगर सोरियासिस का ट्रीटमेंट ढंग से नहीं होता तो सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी लेकर जाता है। और सर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, जो जॉइंट्स अफेक्ट करते हैं वो प्रॉक्सिमली इफेक्ट करते हैं, जैसे डाइस्टल जॉइंट्स इन्वॉल्व करते हैं, और उसके टर्मिनल इंटरफेरेंजिक की पकड़ने का पॉइंट में डाइस्टल आर्थराइटिस होती है और इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं विद नील इन्वॉल्वमेंट। कई बार जब सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व करता है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को लिमिट करता है, इसलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस को रूल आउट कराया जाता है कि आरए फैक्टर प्रेजेंट है या आरए फैक्टर एब्सेंट है। ना कमिंग टू होम्योपैथिक रेमेडीज, कई बार क्या होता है ना, होम्योपैथिक रेमेडीज से जाने से पहले एक चीज बोलना चाहूँगा कि पूरा सोरियासिस अगर हम क्लासिकली अगर केस प्रॉपरली लेंगे तो हमारे पास जिस मेडिसिन पर लैंड अप करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी कई बार हम फंस जाते हैं। तो मैंने 3-4 ही रेमेडी उठाई जिनका सोरियासिस पे रोल बहुत अच्छा है। जो कंट्रायोडी आर्थराइटिस वन ऑफ द वंडरफुल रेमेडी और सोरियासिस कई बार कुछ नहीं समझ में आता है तो अब देखो उसका जो स्केल्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, बिल्कुल सोरियाटिक स्केल्स का रिप्रेजेंटेशन है, मार्क एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन इन फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल्स, और उसको छोड़ने पर लीविंग अ रॉ एक्सुडेटिंग सरफेस बिहाइंड। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर हमारे लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, एग्रेवेशन एप्लीकेशन किसका है। देखिए इचिंग इज वर्स बाय वॉशिंग, नहाने से अभी अगली रेमेडी में आओगे तो उसमें आराम मिलता है, लेकिन इसमें इचिंग इज वर्स बाय वॉशिंग और पेशेंट टू स्क्रैच अंटिल ब्लीड्स, और सोरियासिस इज वर्स इन ड्राई कोल्ड वेदर। जब ड्राई कोल्ड वेदर में सोरियासिस अफेक्ट कर रही है और पेशेंट को वर्स बाय वॉशिंग है, तो वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी एंजाइटी आर्सेनिक की मिले एंड पेशेंट इज हॉट, यू हैव आर्सेनिक। नेक्स्ट ब्यूटीफुल रेमेडी कैलकेरिया सल्फ, स्कैल्प की सोरियासिस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जहाँ लाइकेनिफिकेशन अगर स्किन बहुत हार्ड हो जाए, अभी आप ये देखिए बर्निंग एंड इचिंग वर्स में वार्म इवन बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशन। तो क्या बदल गया ना, मोडालिटी बदल गई, मेडिसिन बदल गई। कैलकेरिया सल्फ सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो, और ये कैलकेरिया सल्फ तो मैंने ऐसा भी इस्तेमाल किया अगर आपको कैलकेरिया सल्फर का इंडिकेशन दोनों का एक साथ आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो और हॉट कैलकेरिया मिल रहा है, तो यू कैन गो फॉर कैलकेरिया सल्फ। यहाँ पे कैलकेरिया सल्फ में सोरियासिस में बहुत सारे केसेस हैं, मेरे आगे केसेस भी एक आध दो केसेस हैं कैलकेरिया सल्फ की होती है, पर कैलकेरिया सल्फ इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर सोरियासिस। और कैलकेरिया सल्फ का जितना लिटरेचर नहीं उससे ज़्यादा अच्छी रेमेडी है कैलकेरिया सल्फ। मैं तो अपनी प्रैक्टिस में कई बार फंसता हूँ जहाँ कैलकेरिया सल्फर मिक्स हो जाती, नहीं मैच करती, और कैलकेरिया सल्फ, लेकिन आप कैलकेरिया में
कालियास, दिस इज थर्ड बेस्ट रेमेडी फॉर सोरियासिस। अगेन देखिए, लेकिन इसमें क्या है, कई बार आपके साथ आता है बर्निंग लेकर के आते हैं, या देखिए यहाँ अभी इससे पहले इचिंग ज़्यादा थी, यहाँ पर क्या है, बर्निंग ज़्यादा है, स्किन ड्राई के लिए इरिटेटेड है। पेशेंट आपके पास आता है अनड्रेसिंग से। एक ही रेमेडी हम लोग बार बार समझते हैं, ब्लूमेक्स, दिस इज अ वंडरफुल रेमेडी जो कि एग्रेवेशन फॉर अनड्रेसिंग एंड लॉन्ग वुंड। और बहुत अच्छी बात क्या है, ये वाला सोरियासिस मॉनसून सीजन में ठीक हो जाता है। जैसे हमने सबसे पहले का अनप्रिडिक्टेबल रिमिशन, वही मालूम है कि सोरियासिस किस सीजन में किसको कब इफेक्ट करेगा, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्स इन कोल्ड सीजन। और एवरी चेंज ऑफ सीजन में अगर रिलैप्स होता है तो वन रेमेडी व्हिच यू कैन थिंक ऑफ इज काली आस। काली भी बहुत एंजाइटी वाली है और आर्सेनिक भी बहुत एंजाइटी वाला है, तो काली आस का पेशेंट तो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी वाला पेशेंट, ठीक है। एंड काली इज चिली, आर्सेनिक इज चिली, हाईली चिली। तो ऐसा फीचर मिलेगा तो काली आस हो। इस रेमेडी को भी सबसे पहले लिखना चाहिए था, वो मैंने सबसे आखिरी में लिखा, दैट इज सल्फर, ठीक है ना। सल्फर में कितना ज़्यादा इंडिकेटेड सब चीज़ें होती है, लेकिन जो सोरियासिस के केस में जब केस ओपन नहीं हो रहा होता है तो दो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। पेशेंट बहुत लोकल एप्लीकेशन लगा के आपके पास आता है, जब वैक्सीनेशन भी बहुत चला रहा होता है, तो सोरियासिस कैन बी थॉट ऑफ। अदरवाइज बहुत ज़्यादा इचिंग है जो कि लाइट में बढ़ती है, प्राइस के स्केल से बढ़ी है, फिर सल्फर की तो अपने अलग मेटल्स है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चार रेमेडी जो कि सबसे ज़्यादा इंडिकेटेड है। पेट्रोलियम वुड बी अनदर रेमेडी जो बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड होती है, लेकिन पेट्रोलियम इससे ऊपर नहीं काम करती, चार के साथ सोरियासिस। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है, जब आप सोरियासिस का केस ओपन करोगे तो यू शुड गो विद टोटलिटी ऑफ। नेक्स्ट केसेस आप डिस्कस करें। नेक्स्ट मेरा अपना केस जो कि आयुष होम में पब्लिश था, दिस वाज द केस ऑफ नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ही केस हमने देखा था। तो केस की रिपोर्ट क्या है, हमारे पास एक 50-year-old पेशेंट आया था, उसका ये नंबर था एंड ही वाज ऑन एलोपैथिक ट्रीटमेंट। तो हमने इसकी केस हिस्ट्री ली, उसी केस हिस्ट्री में क्या मिला, पास्ट हिस्ट्री ऑफ एक्साइजन ऑफ अननोन ग्लैंड ऑफ femoral region in 1984, hypermetropia cured by homeopathy, इसीलिए होम्योपैथी हमारे पास आया तो hypermetropia ठीक हो गया था। हिस्ट्री ऑफ amoebic pleuritis, tuberculosis in childhood and constipation, familial history, father, history of diabetes, hypertension, BPH, mother की history ऐसी थी, personal history, he was married, a farmer by occupation, predisposition to the affection of lungs, predisposed to the affection of lungs, skin and liver, allergic to sulfur containing drugs। अब वो मेंटल सिम्टम्स जो एलिसिट किए गए थे उसको, क्योंकि ये पेपर होता है तो आपको शॉर्ट में लिखना होता है, लेकिन आपको रेगुलर केस टेकिंग लेनी पड़ती है, तो पेशेंट की जो हमने फील किया ड्यूरिंग केस टेकिंग वो उसकी मेंटल सिम्टम्स में लिखा था, एंशियस अबाउट द फैमिली मैटर्स, एंशियस अबाउट ट्रिफलिंग थिंग्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली, गेट हर्ट इजीली, टॉकेटिव, sharp intellect, active in all works, happy and cheerful, he was sensitive to noise, during illness wanted somebody near him, fear of being alone, outburst of anger at times but felt sorry for that very soon। अब आप देखो इतने सारे सिम्टम्स बनते हैं ना, तो ये नहीं पूछता है कि आपको क्या लग रहा है, जब आप हिस्ट्री लेते हो तो ये आपको डेसिफर करना पड़ता है, ये नहीं कि आपको किसी चीज़ से खराब लग रहा है, किसी चीज़ से अच्छा लग रहा है, तो जब आपकी स्टोरी नरेट करता है ना, उसी से ही आपको समझना पड़ता है कि क्या है। कॉन्ट्रडिक्शन इज इंटॉलरेबल। लोग क्या करते हैं कि उससे पूछते हैं उससे कुछ कह रहे हैं तो कुछ गड़बड़ होता नहीं, वो आपकी बातचीत से ही आपको पता चलना चाहिए कि आप कुछ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो तो वो इंटॉलरेबल हो रहा है। तो देयर इज इम्पॉर्टेंट कंसोलेशन। जब फिजिकल जनरल्स में गए तो उसकी एपेटाइट यू कैन सी इंक्रीज, cannot tolerate hunger, desire for sweet, hot food, intolerance to oily things after eating, bloating sensation of abdomen and passing of weight with greedy, aversion to fish,
choose soft or hard 1-2 times per hour, diffuse perspiration, refreshing. तो ये सारे फिजिकल थर्मल रिएक्शन और चिल। तो मैंने ये रूब्रिक उठाया। अभी मैं मायाजन में मत जाइए, मैं मायाजन की चीज़ अगेन मैंने स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन हमने ये उठाया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि इतने मेंटर्स थे, बहुत सारे लोग थे कम, लेकिन मुझे इतने सारे मेंटर्स मिले तो सारे के सारे मेंटर्स मैंने उठा करके उसको रूब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया और जो जनरलिटीज के सिम्टम करने थे मैंने उनको इन रूब्रिक्स में कन्वर्ट किया, उसको रिपोर्टराइज किया मैंने। रिपोर्टराइज करने के ये 4 रेमेडीज मेरे पास सबसे ज़्यादा आई, लाइकोपोडियम, कैल्साटिला, नैप्थोलियम। तो अब मेरे लिए क्या था, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स तो पल्सर इसको लाइकोपोडियम को मिले थे। लाइकोपोडियम को इस वजह से नहीं मिले, इसको मैंने जब आपके बहुत सारे मेंटर्स हो जाते हैं ना, तो मेरा अपना मानना है और वो स्टैलवर्ड से बोलते हैं जो रूल आउट करना चाहिए फिजिकल से रूल आउट करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, जितने सारे मेंटर मिल गए तो किस वाले मेंटर से रूल आउट करूँ। तो मुझे रूल आउट करने के लिए क्या मैंने अपना आइडिया पता है, मैंने रूल आउट पकड़ने के लिए उसका फिजिकल से रूल आउट किया। यहाँ स्वीट, डिजायर फॉर स्वीट एंड डिजायर फॉर हॉट थिंग्स, ये लाइकोपोडियम का इंडिकेशन अमंग्स दीज रेमेडीज। अब देखो लाइक पल्साटिला बताओ, नैप्थोलियम, आर्सेनिक बताओ, तो इन सब में सबसे ज़्यादा किसका है, वो लाइकोपोडियम का है, इसलिए लाइकोपोडियम वाज इंडिकेशन। ये रूब्रिक बता रही है कौन सी रेमेडी ने कितने पॉइंट्स पकड़े, ये सब है। बट मेरा पॉइंट यहाँ पर इस रेमेडी ने क्या पकड़ा है, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें फेस को किस तरह से लेना है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट उसकी मेंटल रूब्रिक कैसे करना है, और मैंने कौन सा डिमार्केटिंग फीचर पकड़ा जिससे कि मैंने लाइकोपोडियम पकड़ा, ठीक है। तो मैंने इसलिए नहीं पकड़ा यहाँ पे लाइकोपोडियम, क्योंकि लाइकोपोडियम सबसे ज़्यादा नंबर मैंने तो इसलिए पकड़ा क्योंकि फिजिकल से रूल आउट किया लाइकोपोडियम को। और लाइकोपोडियम अगर वैसे देखा जाए, अगर नॉर्मली सोचे तो लाइकोपोडियम कौन देना चाहेगा, मतलब नैप्थोलियम और पल्साटिला तो फिर भी आदमी सोचेगा कि सोरियासिस तो दे देगा और लाइकोपोडियम क्यों देना चाहेगा। बट स्टिल आई वेंट क्योंकि होम्योपैथिक प्रिंसिपल ये कहता है जो रेमेडी इंडिकेटेड हो वो आपकी मेंटल प्लेन्स पर काम करती है और वहाँ पर वो काम करती है। सो दिस वाज एट द एंड ऑफ द पासिंग स्कोर वाज 1.9 और जो शुरू वाला बेस लाइन पे 43। अब आपको फिगर्स भी दिखा दें, उसी फिगर्स में इससे आपको पता चलेगा कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है कि उसी आदमी की फिगर एक गलत फिगर्स रख देंगे, ये भी पहले एनालाइज कर लीजिए। कई बार हुआ कि यहाँ पे फिगर्स अदल बदल कर दी, तो ये बिफोर आफ्टर की ट्रीटमेंट की फिगर्स उसी आदमी की हैं, वो भी एनालाइज कर लीजिएगा। और ये फिगर्स हैं जिसमें कुछ भी इस फिगर में नहीं है, ये सब जनरल्स में आप फिगर को चेंज करके प्रेजेंट भी नहीं कर सकते हो। दिस इज दी चेंज जो कि आप देख सकते हैं, बॉडी के किस पार्ट से सोरियासिस किस तरह से चला गया। अब कुछ चीज़ें जब मैंने सोरियासिस किया, जब लिख रहे थे, तो जब एनालिसिस के पॉइंट, डिस्कशन के पॉइंट्स में कुछ चीज़ें हमें मिली जो कि मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी थी, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। मैंने क्या टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स किया, लेकिन अभी कुछ स्टडी, कुछ लोग ऐसा नहीं है कि हर बार आपको रिपोर्टराइज करके रेमेडी तो नहीं करना है। कुछ स्टडीज हुई जैसे अग्रवाल, लॉरेंस, इलेक्ट्रॉन क्लास में कुछ मेडिसिन की जहाँ पर उन्होंने रिपोर्टोरियल टोटलिटी नहीं, बेस्ड ऑन नॉलेज भी, तो भी होम्योपैथी काम करती है, ठीक है ना। लेकिन फॉर अस जब रिपोर्टरी हमारे पास है तो हम उसका इस्तेमाल करना चाहिए। द स्टडीज इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वन followed the homeopathic principle of individualization and single medicine with minimum dose. Lycopodium was prescribed with good results. अब अदर स्टडीज जिन्होंने हीरालाल एंड अग्रवाल फाउंड इन नक्स वोमिका, सोरियासिस नक्स वोमिका में काम कर रही है, स्टेफिसेगुलिया, आर्स एल्बम, लाइकोपोडियम। यहाँ पर कहीं भी काली आर्स नहीं दिख रही, कहीं पर भी पेट्रोलियम नहीं दिखाई पड़ रही है, और कहीं पर भी आर्स आयोडीन दिखाई पड़ रही है ना। तो कहने का मतलब है जब हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो जो रेमेडी इंडिकेटेड होती है वो रेमेडी काम करती है। लेकिन कई बार हम लोग जब फंस जाते हैं और पेशेंट को बीज चाहिए होता है, तो उस बीज के फेस के लिए भी कुछ रेमेडी चाहिए होती है, तो वो पेशेंट का फॉलो
and lycopodium had worked. अब देखिए lycopodium, lachesis, sulfur, R syndrome, विथोरकाव ने पायरोजेनम भी दी, सल्फर भी दी, हीपर सल्फ, फास्फोरस, मेडोराइनम, मेट्रोम्यूल, लैक्सल और पॉइंट टू से कि हमें केस को पकड़ना है, केस को लेकर के आना है। एंड मेरे में लाइकोपोडियम काम की तो इसका मतलब नहीं कि अगले बार मीट खाने वाले पेशेंट आएगा तो उसको लाइकोपोडियम देना है, केस में लाइकोपोडियम आनी चाहिए। सीरीज में दिखाना चाहूँगा, पूरा पढ़ के नहीं बताऊँगा, बस आपको दिखाना चाहूँगा कि there are 5-6 केसेस जो मैंने एक साथ इकट्ठा किए थे और ये पहला केस है। इसमें भी ऐसे ही टोटलिटी सब कुछ ऐसे ही बना हुआ है, इसमें मैंने स्टेफी सेग्रियस डिस्क्राइब किया था इस पेशेंट को और इसको ये पेशेंट है। Second case was calcareous sulfur case। देखिए इस वाले केस में मैंने कैल्केरिया और सल्फर पकड़ी थी। कैल्केरिया का टॉप मोस्ट में आ रही थी, सल्फर यहाँ पर आई थी। जब नहीं केस ठीक हो रहा था मैंने कैल्केरिया सल्फर डिस्क्राइब किया। हॉट कैल्केरिया लेकर के ट्राई किया था एंड इसने अच्छा काम किया कैल्केरिया सल्फर। लेट्स से सोरियासिस कैसे चलेगा, बैक का सोरियासिस तो बिल्कुल ही कर जाएगा। बट दिस टेक टाइम, मतलब तुरंत अगली विजिट पे नहीं होता है सब चीज़। केस को देखिए अगेन यू हैव दिस एंटायर टोटलिटी। जो मेरे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के केसेस हैं, मैं एक इंडिविजुअल केस में आपको क्योंकि काम करने का तरीका वही है, बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट का, बिफोर एंड आफ्टर। द पॉइंट ऑफ शोइंग हेयर की सोरियासिस ठीक होती है, इट टेक्स टाइम और होम्योपैथी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं सोरियासिस के। इस लीजन्स कैसे चले जाते हैं। ये मेट्रोम्यूल का प्रिस्क्रिप्शन है। तो इतना मास्टर चार्ट बना था। दो केसेस मैंने कैल्केरिया सल्फ के, एक में फर्स्ट में कैमोमिला डिस्क्राइब किया था, तो काम नहीं किया तो कैल्केरिया सल्फ। तो मेरे 6 केसेस में मैंने 2 को कैल्केरिया, 3 को कैल्केरिया सल्फ में, 1 2 3 1 2 3 पहले स्टेप से किया, दूसरी कैल्केरिया सल्फ, कैल्केरिया सल्फ। लेकिन फिर अगेन ये नहीं कहने का मतलब है कि कैल्केरिया सल्फ इज दी रेमेडी। मेरे केस में कैल्केरिया सल्फ आ रही थी तो कैल्केरिया सल्फ, और कैल्केरिया सल्फ ने मुझे सोरियासिस में ही नहीं बहुत जगह अच्छे रिजल्ट दिए जहाँ पर मुझे कैल्केरिया और सल्फर है। एक और एग्जांपल मैं बताना चाहूँ, ये तो टोटलिटी की बात हो गई, कई बार ऑर्थोपैथिक काम करती है। मेरे पास मेरी ओपीडी में एक फीमेल आई जो शायद 20 ईयर्स की रही होगी और उसके दोनों हैंड्स में और पूरे पैर में बहुत भयंकर सोरियासिस हो रहा। आई फर्स्ट टाइम मैंने सब केस दिया, तो जो केस दिया दवा की नहीं समझ में आया। नेक्स्ट टाइम जब आई तो मैंने पूछा कि एक्चुअली हुआ क्या। बहुत देर खोजने के बाद बताया कि प्लास्टर बांध दिया था किसी डॉक्टर ने, और एक स्ट्रॉन्ग प्लास्टर बांध दिया था कि उसकी कंप्रेशन में वो चिल्लाती रही। 3-4 दिन बाद जब पता तो वहाँ पर बहुत घाव हो गया, उसका सोरियासिस। फर्स्ट टाइम मैंने टोटोमेट्री इस्तेमाल की सोरियासिस केस में कि वो जो प्लास्टर बना था वो कैल्केरिया से बना हुआ था, यानी लाइन से बना हुआ था। तो मैंने उसको कैल्केरिया काम की और उस कैल्केरिया काम में काम किया। लेकिन अब ये हर बार नहीं है, लेकिन एक वन ऑफ दी वे ऑफ प्रिस्क्राइबिंग होम्योपैथी इज कि जिसने जख्म दिया था उसी ने ही ठीक किया।
वो पेशेंट अभी मेरे साथ है 1.5 साल के बाद, उसका सोरियासिस बिल्कुल ठीक हो गया था, फिर दोबारा रिपीट हो गया। यही से मैं लेसन सीखता हूँ, लेकिन अगले बार जितना सोरियासिस था उसका आधा भी नहीं निकला, लेकिन सोरियासिस निकला, रिलैक्स हुआ। नाउ आई बिगैन विद कैलकेरिया कप 30, नाउ बिगिनर कैलकेरिया कप 2। तो दो बहुत सारे तरीके हैं होम्योपैथी में। तो एक बार फिर से बोलिए डॉक्टर साहब, जिसने जग भी दिया, जिसने जग भी दिया उसी ने ठीक उसी ने ठीक ऑटोपैथी ऐसे ही काम करती है। बहुत बार हमें नहीं समझ में आता है, तो जिस चीज़ से आपको दिक्कत होती है उसी का कुछ बना हुआ होता है। एक बार केस आया था हमारे पास, एक कॉलेज में आया था, तो उसका एस्थमा नहीं ठीक हो रहा था, कई बार दवा की कई बार हमने उससे पूछा तो बोला कि फैक्ट्री में काम करते थे। कौन सी फैक्ट्री में काम करते थे? तो बोला वहाँ पर लेड में काम करते थे, लेड की फैक्ट्री थी। उसके पास गया तो मैंने कहा कि लेड फैक्ट्री मतलब ग्रेफाइटिस, तो मैंने उसको ग्रेफाइटिस 200 दी और उसका एस्थमा आधा हो गया, लेकिन कुछ नहीं। मतलब ये भी ऑटोपैथी काम करती है। तो दीज आर द वेज ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, और ये तरीका है। द सोल पर्पस हियर वाज टू टेल यू दैट होम्योपैथी इज ट्रीटेबल विद psoriasis is treatable with homeopathy with wonderful result, but you have to be patient enough, और patient को भी patient enough होना पड़ेगा इस psoriasis treatable। हम ना तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, एलोपैथी में जाने के शुरू में क्या एक्सटर्नल मिलती है, बहुत सारी थेरेपीज मिलती है, पूरा ट्रीटमेंट में अच्छा लगने लगता है, इसलिए वो भाग जाता है आपके पास, लेकिन यू हैव टू बी पेशेंट enough। कोई भी स्किन का केस एक्सटर्नल एप्लीकेशन से खराब रहता है, psoriasis तो खासकर खराब रहता है, इसलिए प्लीज डोंट अप्लाई पार्शियल। बहुत सारे लोग अप्लाई करवाते हैं। थैंक यू। Really, we all are grateful to Dr. Ratnesh the way he started. It doesn't mean that all of you doesn't know about psoriasis. All of you know about psoriasis, but the way Dr. Ratnesh has brushed up his knowledge, I hope all of you like it and you have appreciated. And the way Dr. Sanjay has started this new step to move, so we all are thankful to Dr. Sanjay also. So I would like to call him on stage and we can elaborate something for future. आइए।